सवै बत भ्रष्ट मतिस तवै सते यह कर्मणाम पारम परम कर्मणा यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहि सम। सवै बद भ्रष्ट मतिस तब एसते। एसते मीन्स डिजायर, यहां मीन्स whoever desires कर्मणाम पारम to limit your activities। कोई भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को और भगवान की लीलाओं को पूरा समझना चाहता है। पारम मीन्स लिमिटेड। परम जी की मशहूर दिस कम्स पारम मीन्स यू कैन पार, नॉट दिस लिमिटेशन। पर भगवान की जो एक्टिविटी है अपार कर्मणा, दे आर अनलिमिटेड। सो द लॉर्ड एक्टिविटीज आर अनलिमिटेड, बट इफ समवन ट्राइज टू लिमिट दोज एक्टिविटीज or to limit those activities, what is called is this bhrashmatis. Bhrashmatis means nonsense, nonsensical. Why it is so? Yad yoga maya gun yoga mohitam. So yoga maya, yoga is used two times. Yad means उनकी, भगवान की, योग माया and gun yoga. So yoga maya in spiritual world, but gun yoga means mahamaya in this world. So even in spiritual world and also in material world, both the places mohitam. Mohitam means bewildered. Who are bewildered? Vishwam samastam, everyone. So everyone is being bewildered by either Yog Maya or Gul Maya. How is this? In spiritual world also bewildered. Prabhupada very nicely in Parpat Prabhupada is, what is writing Prabhupada? Those who are in spiritual world are absorbed in your loving service, forgetting themselves and you also. This is one wonderful point we can make out from this statement made by Srila Prabhupada. यदि कोई भगवान की सेवा में पूर्ण तरीके से लगा हुआ है, यदि उसको भगवान भी याद नहीं रहते हैं और even he forget himself, so that is the position of the pure devotee who are there with Krishna in the spiritual world. कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ सेवा करते हैं तो सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं और अपने आप को भी भूल जाते हैं। थोड़ा ना सो आध्यात्मिक दुनिया में दी फॉरगेट ही जो भगवान भी है, और ना जिससे हम जब करते हैं ना, कभी बोलते हैं सुनना है कि भूल जाना कि आप कौन है भगवान। यू जस्ट कीप हियरिंग द वॉइस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंड दोज हु आर इन मटीरियल वर्ल्ड आर एब्जॉर्ब इन मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयरफॉर आल्सो फॉरगेटिंग। सो इट सेड यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम, then Bhagavan Videhi Sam. Sham means good fortune. Videhi means requesting Lord, please to bestow mercy on everyone. So these great sages, this yet another beautiful prayer by the great sages of upper planetary system is Jan
tap and sat. Janlok, taplok, tapaslok and satlok. Those who are there in these planetary systems, they are very, very advanced, and actually they have only one business for self-realization. All the living entities, all the great sages, all personality who are living on Jan Tap Sat, they have only one business, to self-realization. And they are praying to the Lord when they saw the wonderful form of Barahadev. So, praying, so for what they are praying, please be good fortune others. So the saintly person and those who are rightly situated, Prabhupada says, they don't pray for himself or herself, mostly they pray for everyone. Like Prahlad Maharaj, he said, I am no worry. I am very happy whichever position I am, because I am always remembering you. But I am worried about these fools and rascals, because they have made their goal of life is sense gratification. So here also we see the great sages, they are praying and so that the Lord be merciful. Now Prabhupada is writing, Jan tapas sat lokas, who are far more intelligent and powerful than human beings. So they are very, very powerful. So even they are saying it's very difficult to understand the Lord. They are saying to understand fully the Lord is very, very difficult. So, but those who are bhrashta matis, they are trying to do karmanam param, trying to limit the activities of the Lord. So the Lord's activities, भगवान के जो क्रिया हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, क्रिया नहीं बोलते उनको लीला. What is the difference between लीला and क्रिया? लीला means for his pleasure. भगवान जो कुछ भी करते हैं अपनी खुशी के लिए बोलते हैं. Past times. He is not bound to do anything but his pleasure. And his pleasure is defined by his devotees' pleasure. So भगवान का एक ही काम है. भगवान को वहां शांति नहीं है गोलोक धाम में. एक ही काम है कि जो हम जैसे लोग, जो मूर्ख लोग हैं, यहाँ आके फंस गए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं और एडजस्टमेंट कर रहे हैं होने का, इनको कैसे वापस लेके आना है. Krishna is only one work. He want to bring all the soul back to his Golok Dham. He is very anxious. Either he comes, he sends his devotees, he make different plan, different ways and means, so that the jiva can come. So भगवान के जो अवतार हैं वो भी बहुत हैं. कितने अवतार हैं? असंख्या, which cannot be counted. Bhagavatam gives example, the 3rd chapter of the 1st canto. How many? As many waves as in the ocean. Can you count how many waves are there in the ocean? They keep coming, going. So भगवान के जो अवतार हैं वो असंख्य, अनंत हैं, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल है. एंड जो भगवान की लीला, इवन दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्रभुपाद जी बोलते भगवान की जो लीला है वो क्या है? नित्य लीला. प्रभुपाद जी बोलते इस यूनिवर्स में भगवान ने जन्म लिया, वेरी नेक्स्ट मोमेंट कृष्ण विल टेक बर्थ into another universe. Very next to next moment he will take another universe. So भगवान की जो जन्म की लीला है, not only जन्म लीला, भगवान ने भी यहाँ गोवर्धन उठाया,
नेक्स्ट सेकंड दूसरे यूनिवर्स में, तीसरे यूनिवर्स में. हाउ मेनी यूनिवर्सेस आर देयर? अनकाउंटेबल, अनंत कोटि. तो इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड जो भगवान की लीला है, इवन ए मूवमेंट इज अनकाउंटेबल. So the limited living entities, we are all limited. We are conditioned. Limited living entity cannot or understand the full leelas of Krishna. In Brahma says, "No, whoever says I have understood Krishna, let him say." But as far as myself is concerned, my mind, my words cannot reach. Forget about me. Even Lord Ananta, having unlimited hoods, and is glorifying Krishna since beginning of creation. He is not able to reach to the limits. Then he said, forget about even Ananta. Even he himself is trying to know. But he is also very surprised to know his wonderful activities and his potencies. Krishna's potency is unparalleled. Somebody says Krishna is all powerful, you should know. As soon as he comes to the end of his potency increases. And that's the reason Chaitanya Mahaprabhu descended to understand himself as a form of a devotee, as a form of mood of Radharani. Subalitam. Dutiya Subalitam. Bhava Subalitam. So in the complexion and the mood of Radharani, Chaitanya Mahaprabhu descended, he wanted to know. So Prabhupada says, frog-like scientist, frog-like mental speculator. ना प्रभुपाद जी बहुत जगह एग्जाम्पल देते हैं कि किसका, कुआं का मेढक, कूपमंडू का. तो कोई मेंढक है कुआं में, तो एक दूसरा मेंढक कहीं से ऊपर से गिरता है, बोलता है भैया भैया भैया, गले मिलते हैं. कहीं से तो कोई अपना प्रजाति आ गया, तो भैया तुम कहाँ से आए हो? तो बोलता है कि यहाँ पे थोड़ा दूर पे बहुत बड़ा एक जगह है, बहुत बड़ा हमारा वाटर बॉडी है, पानी का घर. तो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा. क्या दुगना है? नहीं और बड़ा है, 4 गुना है. नहीं बहुत बड़ा, 10 गुना, 1000 गुना. नहीं कितना है? बोलते करोड़ों अरबों गुना. तो जो छोटा सा जो मेढक था, मेढक के अंदर बोला असंभव. तो उसका कि दिमाग है वो मेढक कुएं के समान है, कुएं के अंदर है. तो वैसा हमारा छोटा छोटा साइंटिस्ट है, बोलता है प्रभु जी नाक उठा के, कान उठा के, अरे कोई नहीं है, जीवन यही है, सूर्य पे कैसे लोग रह सकता है? तो दीज आर ऑल देयर टाइनी फॉल्टी. इस जोक. यदि कोई भगवान की शक्तियों को, भगवान की गुणों को नापने का कोशिश कर रहा है, तो ही विल बी द पर्सन ऑफ जोक. वो एक लाफ्टर का एक वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि लोग हंसेगा, यार ये क्या कर रहा है. जैसे कोई बोलता है कि पृथ्वी में कितना कण है, हम गिन के बताएगा, तो लोग हंसेगा, यार पागल हो गया लगता है ना. कि तो वैसे ही कोई भगवान को अपने बलबूते पे समझने की कोशिश करता है, ही बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर. वो हंसी का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. सो बिकॉज एवरीथिंग अबाउट द लॉर्ड इज अनलिमिटेड. गुण नाम लीला
एंड इवन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ जब रामचंद्र जी अवतरित हुए थे, तो जो उनकी लीला है वो भी अनलिमिटेड है। एक्चुअली नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को बताया था राम जी के बारे में, फिर वाल्मीकि जी ने उसको लिखा था। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें कितने श्लोक हैं? 24,000, 24,000। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, वाल्मीकृत जो ओरिजिनल रामायण है संस्कृत में। और नारद जी को किसके राम जी के बारे में, लीलाओं के बारे में किससे पता चला? ब्रह्मा जी से। और जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो श्लोकों में भागवतम समझाई थी, उसमें कितने श्लोक थे? 60 कोटि। कितने? 100 करोड़। वो भी पूरी नहीं थी। जितना ब्रह्मा जी को समझ में आया राम इन वन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, हिज लीला इज अनपैरेलल्ड। जब राम जी वापस आए तो कितने साल तक राज्य किया था, किसी को पता है? हाउ मेनी इयर्स द लॉर्ड रामचंद्र जब बाद में आए? 11। तो उनकी जो लीलाएं हैं, एवरी अनलिमिटेड लीलाएं हैं भगवान की, इवन वन इनकारनेशन, और दे असंख्य। एंड एक्चुअली भगवान की जो लीलाएं हैं वो हर जीव के साथ हो रही हैं। कैसे हो रही हैं हर जीव के साथ? परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे। यदि हमें थोड़ा सा शुद्धता होगी तो वी कैन सी द हाउ परमात्मा हमारे साथ लीला करके हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। नॉट ओनली हर जी, इवन हर कण के अंदर भगवान आ जाते हैं। एक्चुअली भगवान से कुछ अलग नहीं है। कृष्ण सिंह आई एम सृष्टि मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्ति मूर्तिना मद स्थानी सर्वभूतानि ना हम चेदो। इवन एवरीथिंग रेस्टेड ऑन कृष्ण। विदाउट कृष्ण एंटरिंग नथिंग विल हैपन। तो ऐसे भगवान के अनंत और भगवान की लीलाएं, और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी भी जो लीलाएं हैं वो भी वो अनंत है। जैसे प्रभुपाद ने कितनी लीला कर ना, प्रभुपाद की मेमोरीज के एंड नहीं होते। इफ यू कीप हियरिंग अबाउट मेमोरीज, अनपैरेलल्ड भगवान प्रभुपाद जी के, कहाँ पे किस भक्तों के साथ कैसे कैसे किया। तो जो भगवान की लीला भी है, पर उनका भक्त है, उनके भी लीला अनंत है ना। इवन द्वारका में भी भगवान जब 16,108 रानियों के साथ थे, भगवान ने अपने आप को विस्तार कर दिया था। रास डांस हो रहा था, कृष्ण एक्सपांडेड, और सब गोपी को लग रहा था कि भगवान हमारे साथ है। भगवान तो सबके साथ है। तो भगवान की और जो लीलाएं हैं वो अनपैरेलल हैं, और जो हर जीव का भगवान के साथ संबंध है, और उस संबंध को भूल के हम इस भौतिक दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं, जो कि असंभव है। तो हम लिमिटेड होने के कारण, हमारा दिमाग भी लिमिटेड है, हम पूरा उसको नहीं कभी नहीं समझ सकते। तो और भगवान की जो यहाँ पे प्रेयर्स हैं, जो हम देखे कि जो जन तपस और सतलोक वाले जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर्स आर वेरी वेरी पावरफुल। और स्पेशली जब भक्त लोग प्रे करते हैं तो भगवान उसको बहुत जल्दी रिसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कि अद्वैत आचार्य थे, उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य के समय कि लोग इतने गिर गए थे कि उन्होंने एक पर्टिकुलर केस देखा कि देयर वाज 2 वेरी रिच फैमिली, दोनों के पास एक कुत्ता था।
उनकी वो शादी करने का उन्होंने एक इन्विटेशन सबको दे के एक शादी कही, तो वो पागल हो गए कि लोग कहाँ, मतलब भौतिक दुनिया में आके कर क्या रहे हैं. His dogs, he looked at their marriage, they're inviting. That when he saw this incident especially, and more so कि लोगों इतने पतित हो गए. अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु. उनको लगा हमारे स्कोप के बाहर चला गया है लोग यहाँ, हमारे हमसे ये लोग नहीं सुधरेगा. तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया. हाँ, क्या प्रार्थना, क्या किस श्लोक में उन्होंने मेडिटेट किया? तुलसी दल मात्रेना जलश्चुलुकेन वा विक्रियते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सला. ई श्लोकात आचार करें विचार. कृष्ण के तुलसी जल दे ये जना तार ऋण शोधिते कृष्ण. तो उनका ऋण चुकाने के लिए मतलब भगवान अपने आप को दे देते हैं. पर कितने कृपालु भगवान हैं, जो पूरी सृष्टि है अनंत, जो हर कण उनसे उनकी इच्छा से चल रहा है, वो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं. अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इव दुजा साधिर ग्रस्त हृदयो भक्तियो भक्त जन प्रिया. भगवान को अपने भक्तों के भक्त हैं वो बहुत प्रिय है. तो जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनलिमिटेड लीलाएं हैं. और एक जगह ऐसा दिया गया है कि 10th कंट्री में, आफ्टर मेनी लाइफ टाइम समवन माइट काउंट द डस्ट पार्टिकल ऑन द अर्थ. यदि कोई बोलता है शायद कोई ऐसा कोई मशीन बन जाए और कुछ हमारा साइंटिस्ट का 15-20 सिर हो जाए ऐसा, यदि वो बहुत जन्मों के बाद, even he might able to count the dust particle on the earth after many birth, but no one can ever finish counting. भगवान खुद बोल रहे हैं, my qualities, activities, names in the birth. वो भगवान आपके साथ उनका बहुत प्रेम भरा संबंध है. उस दिन भागवत गीता जयंती हम डिस्कस कर रहे थे. भागवत गीता क्या है? भागवत गीता एक लव लेटर है भगवान का, प्रेम पत्र दिखाए, भैया तुमको कैसे हमारे पास आना है. पूरा भगवान ने कम से कम 200 जगह बोला, तुम ऐसा करोगे तो आ जाओगे. मन मना मत भक्तो अनन्यान में ऐसा सततम की भगवान ने 200 जगह दिया, तुम कैसे हमारे पास आना है और कैसे तुम हमसे थोड़ा दूर चले जाओगे, तो वो नहीं करो, ऐसा करो तो हमारे पास आ जाओगे. तो कृष्णा का एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा है, सबके लिए अलग है. प्रभुपाद जी बोलते हैं, इज अ पर्सनल इंस्ट्रक्शन कृष्ण इज गिवन भागवत गीता टू एवरीवन. इज अ पर्सनल है सबके लिए. तो यदि आपको कोई लव लेटर लिखता है तो उसको 4-5 बार पढ़ते रहते हो और उसका याद हो जाता है पूरा, कहाँ कैसा पूरा कौन सा शब्द यूज किया है. तो वी हैव टू रीड विद दैट इंटेंसिटी भागवत गीता, व्हाट कृष्णा इज रिटन फॉर यू. भगवान का प्रेम पत्र कि आपको आपके लिए लिखा गया है. तो हमने बोला भगवान का एक ही कंसर्न है कि हम कैसे वापस आए गोलोक धाम. और हमारे गोस्वामीज बताते हैं कि जब जीव गोलोक धाम जाता है, भगवान इतने उतावले हो जाते हैं कि वो मूर्छित हो जाते हैं कि दिस इज माई सोल हैज कम बैक. तो जो प्रेम का जो संबंध है, उस प्रेम के संबंध को हम भूल गए और स्टेल बासा सूखा सेंस इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं. पूरा उसमें कुछ नहीं है. बोलते हैं प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि हम उसको ना प्रवादी उदाहरण देते. कोई गन्ना खाता है, गन्ना खा को चूस के उसको फेंक दिया, तो उसको जूस तो निकल गया, दूसरा उठा के बोलता है अरे ये तो गन्ना मिल गया, उसको चूसता है. तो उसमें तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके अंदर. तो वैसे ही हमारा जो भौतिक जीव है उसमें खुशी है ही नहीं, उसमें खुशी ढूंढ रहा है. भगवान ने पूरी दुनिया में उस पर क्या टेक लगा दिया? दुखालयम.
पुस्तकालय लिखा है, हम वहाँ जाके भिंडी तुरई ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, वहाँ पुस्तकालय मिलेगा। हाँ, भगवान ने दुखालय वहाँ पे टेक मार कर दिया, और आदमी सुबह से रात तक भाग रहा है, सुख कैसे मिलेगा आगे पीछे करके। सो दिस इज वेरी आयरनी, एंड इसलिए इसमें भगवान जो बताए हैं कि इवन सेकंड चैप्टर भागवत गीता में स्थित प्रज्ञा कि क्या लक्षण है। क्या लक्षण है बोलते हैं भगवान? प्रजाहीति यदा कामान सर्वान पार्था मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थिर प्रज्ञस्तदुच्यते। तो संस्कृत से डिजायर कहां से आती है? मनोगतान, स्पेकुलेशन से। हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो जड़ कहां से उत्पन्न होता है? जो मेंटल स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेट करते, शायद ऐसा खुशी मिले, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। सो इट इज द ट्रांसलेशन इज, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arises from mental concoction, when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone. Self alone means in Krishna. We are part and parcel of Krishna. Then he is said to be pure transcendental consciousness. जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? दिव्य ज्ञान से। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम अपने थॉट्स को, जो संस्कृत में थॉट्स आ रहे उसको तो हम स्टॉप करना बहुत कठिन है। एक है कि हम स्पेकुलेशन नहीं करें, फिर भी जो हमारा कुछ ना, अर्जुन क्या बोलते हैं कि अथ केन प्रयुक्तेयम पापम चरति पुरुषा। हम नहीं चाह रहे, फिर भी आदमी पाप की तरफ कैसे, जैसे उसको धक्का दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, चलो करो करो करो। तो हम, ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहे तो ये भी पाप की तरफ खींच रहे हैं। वो कैसे खींच रहे हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण सवद महाशनो महापापमा एदि सर्ववेरिणा। और वो हमारे ऊपर जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, वो बहुत हावी तरीके से लगा हुआ है। कि जो मोड्स ऑफ नेचर इस लुक लाइक इज फोर्सिंग, समझते हैं सदगुण रजोगुण तमोगुण। ये क्या है? सदगुण रजोगुण तमोगुण ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपको उस दिशा के लिए, आपको धक्का देते हैं उस दिशा के लिए, आपको खींचते हैं उसकी तरफ ना, बिकॉज दीज मोड्स आर वेरी पावरफुल। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में भागवत गीता में क्या बोले? त्रिविण गुण मयेर भावे एभी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति माम एभ्या परम अव्ययम। सो त्रिभिर गुण मयेर भावेर एभी सर्वम इदम जगत मोहितम। तो जितने भी लोग हैं इस जगत के, वो किसमें? सर्वगुण मयेर भावे, उस मोहित हैं इन तीनों गुणों के कारण। ना अभिजानाति, दैट्स द रीजन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। माम एभ्या परम अव्ययम, तो भगवान जो है वो तीनों गुणों से ऊपर है, परे है। और जब तक हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तीनों गुणों से हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? मामचा अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समति ते तान ब्रह्म भूराय कल्पते। अव्यभिचारेण भक्ति मीन्स जब हमारा मन पूरा भगवान की सेवा में लगेगा,
भक्ति में हम चीटिंग नहीं कर सकते। थोड़ा सा चीटिंग करके हम गोलोक धाम चले जाए, नहीं होगा ना, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू डू, वी आर चीटिंग अवर सेल्फ। और जब मन पूर्ण शुद्ध होना है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 24 घंटे इंटेंस डिवोशन सर्विस। आप 23 घंटे हैं, कोई कृष्ण कॉन्शियस 1 घंटे नहीं है तो 1 घंटे माया कॉन्शियसनेस। आप तो या तो कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे या माया कॉन्शियस, बीच का कोई स्थिति नहीं है। बहुत है, कॉइन के 2 साइड है, एक तरफ कृष्णा एक तरफ माया, एक रहेगा, बीच का नहीं है। खड़ा कॉइन नहीं है, या तो ऐसा है या ऐसा है। तो रसोहम अपसु कौन्तेय, नो दैट इज व्हाट इज, या विषया विनिवर्तन्ते परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं आएगा, लोअर टेस्ट नहीं जाएगा। जब तक आपको जप में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के सुंदर दर्शन में जब तक आपको आकर्षण नहीं आएगा, तब तक आपका लोअर टेस्ट नहीं जाएगा। जब तक आपको आकर्षण नहीं आएगा भगवान के बारे में सुनने में, वो तभी होगा जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, जॉइंटिस का एग्जाम्पल देते हैं, ये तो बहुत मीठा है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, और सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ए, हम बोलते हैं बासा चीज है, जो खराब चीज है, सड़ा हुआ चीज है, वेरी फिल्दी है, किंतु इस मेंटल कंकॉक्शन इसको कनकॉट करके बहुत बड़ा उसको हाई फाई बना दिया है। हम जन्म जन्मांतर से, और अभी भी उसका, क्योंकि जितना कंटम्पलेट करेंगे, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। तो जितना ज्यादा हम सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटम्पलेट करेंगे उतना ज्यादा हम, तो बट सेंस ऑब्जेक्ट तो वी आर फिल्ड विथ ना, द फुल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ द सेंस ऑब्जेक्ट। So that's the reason. And the second chapter, Arjuna is asking, how to walk. Walk means how to lead a life in this world with the temptation of sense object, filled with the temptation of sense object. इसमें इस दुनिया में रहते हुए हम भक्ति कैसे करें। किम आसीत मतलब कैसे बैठना, बैठने का मतलब है हाउ इज सिचुएट योर सेल्फ। किसके एग्जाम्पल देते हैं भगवान? टोल्टाइस का, कछुआ का। जहां भगवान की सेवा में अपने सेंसेस को निकालना है, जो सेंस ऑब्जेक्ट आया क्या करना है? सेंसेस को अंदर कर लेना। वी आर इन द रॉन्ग प्लेस, वी आर किंगडम ऑफ माया। ऑलवेज रिमेंबर, never think I am very powerful. We are kingdom of Maya. We are, the whole world is filled with the time, and that too Kali Yuga. So जितना उसको कंटम्पलेट करेंगे उतना ज्यादा हमारे माइंड में वो स्ट्रांग बनता रहेगा, उतना डिफिकल्ट होगा निकालना। और मृत्यु के समय हमारा गलत विचार रहा, गलत सोच रही, और जो विचार सोच करेगा जो हमने पूरे जीवन भर सोचा है, for the sum total of your whole activities this life become the consciousness in the time of death. तो हमको कितना केयरफुल होना है, कोई एक भी चीज हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा चीज जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमको क्या मृत्यु के समय यदि कुछ रहा तो we become a dog, cat, anything. How danger it is.
पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव। इसलिए जो वैदिक समय में संन्यास कंपलसरी था कि घर में रहेगा तो लोगों के बारे में देखता रहेगा, सोचता रहेगा। The time of death, he will become like this only. So sannyas was mandatory for everyone, other than Sudra. तो हमको बहुत बहुत चेतना, एक देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना है और हमको बहुत बहुत अपने एक्टिविटीज में बहुत केयरफुल रहना है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अरे क्या पता चलता है, थोड़ा एक भोगा खा लेते हैं। अब जो हम खाते हैं वो सिर्फ चेतना में आता है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद जी वहाँ गए थे अमेरिका, तो प्रभुपाद जी 70% टाइम प्रसाद बनाने में लगाते थे। प्रभुपाद बोलते जब कराते हैं सिर्फ उनको भगवद गीता सुनाते हैं। प्रभुपाद ने प्रसाद सिर्फ नॉट ओनली मटेरियल वे में उनको आकर्षित करना, देयर वाज नॉट, उनका जब चेतना शुद्ध होगा तब उनको दिमाग में उनको समझ में आएगा भगवान का नाम, भगवान का नाम जब अच्छे से कर पाएंगे। So as a devotee we have to be very very careful। आहार निद्रा भय मैथुन में ना, तीसरे अध्याय पहले स्कंद का 44वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि हम जिस शुद्ध नहीं रहेंगी तो हमारा मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आहार निद्रा भय मैथुन। इसलिए हमें गुरु के जो निर्देशों को पूरी दृढ़ता से उसको फॉलो करने की कोशिश करना है और भगवान सहायता करेंगे। असंभव काम नहीं है। लगता है प्रभु जी, लगता है इस जीवन में तो नहीं होगा, नॉट लाइक दिस। इस जीवन में प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं, हम आपको गोलोक धाम लेके जाएंगे। प्रभुपाद जस्ट फॉलो व्हाट आई से। प्रभुपाद जी कहते फॉरगेट लस्ट, हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रभुपाद ऐसे आई किक आउट माया। किक आउट माया में दुर्गा देवी के लिए प्रभुपाद जी वी कैन नॉट टच यू, बट एज लॉन्ग एज वी आर लॉयल टू श्रीला प्रभुपाद, as long as we are working for him, we are following his instruction। जब भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, जिसका मतलब क्या है? समर्पण करो। मतलब क्या है? हाँ, भगवान को जो बोलते हैं उसको मानो। जो भगवान की इच्छा है उसको अपनी इच्छा बना लो। That's called सर्वधर्म। देखिए बोलता गोविंद गोविंद शरण भगवान सभी कुछ हो, अब जो भगवान बोले उसको उल्टा कर रहे हैं। सो दैट नो समर्पण। और प्रभुपाद से लिप टॉकिंग विल नॉट वर्क। होता है ना कि मुंह से बोलना, प्रेरित तो बहुत कर रहे हैं मुंह से, पर हृदय में हमको अटैचमेंट है सेंस ग्रेटिफिकेशन थिंग से। पता किसका एग्जाम्पल देते हैं? SSR में एग्जाम्पल देते हैं किसका? नाव का। उसका क्या बना हुआ है? लंगर। एंकर उसका निकाला नहीं। हम बोलते प्रभु जी बहुत जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा है? हमारा मन और हमारा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो इंद्रिय तृप्ति का जो विचार है, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे नहीं जाएगा। कितनी बार भक्ति कर लो, हमको उसको ना, जैसे आपके अंदर कोई इच्छा आया इंद्रिय तृप्ति का, वो आपसे जुड़ जाता है। आपसे क्या होता है? चिपक जाता है, चिपका रहता है पूरा। और जितना और इंडल्ज होंगे और उसका स्ट्रेंथ चिपकने का जो होता है ना, स्टिक मोर एंड मोर, और उतना स्ट्रांग होता रहता है। आपको खुद को निकाल के फेंकना है। जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, खुद निकाल के फेंक, भगवान भी नहीं फेंक सकते उसको। आपको खुद, आई डू नॉट वांट दिस ऑल नॉनसेंस। हमको जन्म जन्मांतर से हमें दुख का कारण बनना है। मरने के बाद यदि हम पशु योनि में चले गए, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो ना deluded by the three modes, the whole world does not know me, who are above the modes and inexhaustible. The whole world is
enchanted by three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand that transcendental to this material nature as a supreme Krishna. It's beautiful purport if you read later because time is not there. So प्रभुपाद जी बोलते हैं जो प्रवृत्तियां हैं वो अपने पूर्व लाभ से हमारी जो इंक्लिनेशन है हम उनको अपने लाइफ आफ्टर लाइफ कैरी कर रहे हैं और प्रवृत्तियां इंक्लिनेशन को हमको कैंसिल करना है, अपने आप नहीं जाएगा क्योंकि जितना उन प्रवृत्तियों को हम एंटरटेन करेंगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग बनता रहेगा. सो सपोज वी मे नॉट हैव ए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, हमें उतनी शक्ति नहीं होगी कि इससे बाहर आ सकें, बट यदि हमारी सिंसियर इच्छा है आप भगवान से प्रे करिए, कृष्णा विल टेक इट आउट फॉर यू. ओनली व्हेन यू वांट कृष्णा, हम इसको निकालना चाहते पर निकल नहीं रहा है, थोड़ा सहायता करो यार, नहीं निकल रहा है, तब भगवान खींच देगा. तो नो ऑब्स्टिकल इन भक्ति कैन स्टॉप योर भक्ति. आपकी बोलते ना अहेतु की आप, नो मटीरियल कंडीशन कैन बिकम द ऑब्स्टिकल इन योर पाथ इफ यू वांट टू एडवांस. यदि हम एडवांस नहीं हो रहे तो हम ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है. हम 10 को बोल सकते हैं नहीं इस कारण से नहीं हो पा रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, जी हमारे साथ ऐसा कर रहा है, आई एम द कॉज. जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है आई एम द कॉज. चाहे हमको दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, जो भी हो रहा है हम उसके कारण है. भगवान तो हमको हर पग में सहायता करना चाहते हैं. तो जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं भगवान 100 कदम आगे हमारी सहायता करते हैं, पर पहला कदम हमको बढ़ाना है. भगवान देखता रहता है, चलो भगवान बोलते चलो आओ, हम एक कदम आते हैं, देन कृष्ण विल हेल्प. और भगवान तब हेल्प करेंगे तब आप उनकी हेल्प आप स्वीकार करेंगे. और यदि हम भगवान के धाम जाना चाहेंगे तब जाएंगे. ऐसे नहीं बोलते हम धाम जाना है पर हम उसका उल्टा काम कर रहे हैं. हम जो काम करना चाहते, आज सुबह का कोट था ना मंगल आरती में, बहुत सुंदर कोट था, ऑल यू मस्ट बी नोइंग दैट. व्हाट इज द कोट? इट वाज, यदि कोई क्या था, माया एजेंट है. माया कोई आपके लिए खराब नहीं है. माया बोलती तुम गोलोक धाम चले जाएगा तो भगवान को डिस्टर्बेंस करेगा, खुद परेशान होगा, भगवान को परेशान करेगा. तो हम जब इन गुणों से बाहर निकलते हैं, जब भगवान में पूर्ण सर्विस में लगते हैं और समझते हैं क्या सही क्या गलत है. जैसे मतलब थॉट्स तो आएगा पर आपका इंटेलिजेंट को क्रॉस करना है, क्योंकि बुद्धि क्रॉस करेगी. बहुत सारे थॉट तो आ रहे हैं, क्रॉस क्या करेगा, इसको एंटरटेन करें कि नहीं. हाँ तो आता रहेगा थोड़ी देर, उसको है नहीं और कहीं मन लगा देंगे, फिर आएगा थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, दूसरे दिन आएगा, 2 महीने बाद आएगा, खप की आप जब तक उसको पूरा क्रॉस नहीं करेंगे. आई डू नॉट वांट इट, आई डू नॉट डेम एनीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. जब तक हमारे हृदय में, जब तक हमारे अंदर थोड़ी भी इच्छा रहेगी, थोड़ी भी हमको होप रहेगा कि देयर कुड बी सम हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू बी कीप कमिंग. And Krishna being merciful, Krishna will give my opportunity. So we have to become very strong by remembering Krishna, by chanting His holy name, and knowing well कि हम जब तक हम अपने आप को यदि शुद्ध करना नहीं चाहेंगे, अपने आप को जो सिंसियर इच्छा नहीं रहेगी, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते. So I think this is the last one. Next verse onwards, Maitreya Muni started speaking. सो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि.